Hello everybody, welcome to iExamBee's Legal Beat. This is Amrita, your law faculty at iExamBee. In this video today we are going to discuss a very important legal news and also analyze the constitutional perspective of that. But before we start with it, don't forget to subscribe to Legal Bee, our exclusive YouTube channel for discussing the legal updates, legal exam preparation courses and whatnot. अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं यू कैन राइट टू अस ऑन hello@iexamb.com या फिर आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हो 9205524028 एंड यू कैन ऑल्सो विजिट द वेबसाइट www.iexamb.com. The topic that we are going to discuss today is Kiren Rijiju, the ex-law minister versus judiciary. क्या है ये conflict? Actually हमें इसको समझना होगा. Kiren Rijiju, he was the union law minister and he has held this post for around 2 years plus now. But now suddenly he has been removed from the Union Law Ministry and he has been shifted to the Earth Sciences Ministry. So क्या ये controversial comments के वजह से हुआ है इनके साथ जो उन्होंने जुडिशरी के बारे में दिए हैं टाइम एंड अगेन? उन सारे कमेंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड एनालाइज करेंगे कि ये जो सारे कमेंट्स है ये एक्चुअली है क्या. Is it a conflict between him and the judiciary or rather is it a conflict between the executive वर्सेस जुडिशरी, जो मैं आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ. अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा है, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये तीनों भी फील्ड्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी का डिवीजन ऑफ पावर्स किस तरीके से है कॉन्स्टिट्यूशन में. अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है वो किस तरीके से गवर्न किया जाता है एंड अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस along with independence of judiciary, which is one of the basic feature of the Indian constitution. So how is it coming into controversy and how this minister has actually made certain comments on this particular topic? इन सारे comments को हम डिटेल में समझेंगे एंड इसका कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये दोनों सेंसिटिव स्फीयर्स रहे हैं. हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री भी हम लोग देख सकते हैं जो आज प्रेजेंट में भी हो रहा है. सो ऑल दीज थिंग्स एज अ लॉ स्टूडेंट, एज अ मेंबर ऑफ द लीगल फ्रैटर्निटी, वी all need to understand this क्योंकि ये सारे करंट अफेयर्स हमें पता होने बहुत जरूरी है. बिफोर वी स्टार्ट विद द डिस्कशन, लेट मी गिव यू एन अपडेट. यूजीसी नेट लॉ फ्री मॉक टेस्ट आर अवेलेबल एट iExamBee's वेबसाइट. अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है और आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप कोई सेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि यूजीसी नेट और स्टेट लेवल एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस सेम होता है टीचिंग रिलेटेड जो एग्जाम्स होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो उसके लिए अगर आपको आपकी प्रिपरेशन चेक करनी है यू कैन चेक आउट द फ्री मॉक टेस्ट. इनको जाके अटेम्प्ट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा आपकी क्या पोजीशन है, आपकी क्या नेक्स्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. Also, one more update I have for you. If you are preparing for SEBI Grade A Legal Officer Examination, there is online course available at iExamBee and we have been training students for a long period of time now. This is our expert faculty as you can see and currently there is a flat 40% off that is available on the courses. So ये discounts भी आप enroll कर सकते हैं, avail कर सकते हैं by enrolling now immediately. So ये सारे details आपको मिल जाएंगे अगर आप website visit कर लेते हैं. And अगर आपकी कोई भी queries है आप इस वीडियो के comment section में भी लिख सकते हैं and prepare 50% faster with iExamBee. So coming back to our topic, who is Kiren Rijiju? He was a former union law minister and at present he is in the Earth Sciences Ministry, जैसे मैंने आपको अभी बताया. He has taken over as the union law minister in July 2021. He has completed his law from the Delhi University, but currently he is not holding the law ministry anymore and Arun Ram Meghwal has taken over as the law and justice minister now. So this is what is the current situation. But ऐसा क्यों हुआ? The minister has made certain comments that have created a long controversy. So ये controversy actually क्यों हुई, ऐसे क्या कमेंट्स किरण रिजिजू ने दिए थे, वो सारे कमेंट्स हम एक एक कर इस वीडियो में देखेंगे. क्योंकि ये सारे कमेंट्स उन्होंने एज अ मिनिस्टर तो दिए हैं, एज अ लॉ मिनिस्टर ही होल्ड्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इफ ही इज मेकिंग सर्टेन कमेंट्स विच आर अगेंस्ट द जुडिशरी एंड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज गोइंग टू बी वेरी सीरियस एंड दैट इज वॉट वी हैव सीन. उसके सीरियस उसके सीरियस इफेक्ट्स उनके पोलिटिकल करियर पे भी हमें देखने को मिल रहे हैं because he being a very experienced person in the legal fraternity and a very active member of that, अगर उनको suddenly Earth Sciences Ministry में शिफ्ट कर दिया गया है तो ये कोई छोटी बात नहीं है. इसके काफ़ी सारे controversial चीज़ें हमें इसमें समझने को मिलेगी यहाँ पर कि ऐसा क्यों हुआ एंड इसका इफेक्ट एक्चुअली उनके करियर पर भी होगा. बट देन
यहाँ पे हमें ये एनालाइज करना होगा कि उनके ऐसे क्या कमेंट्स थे. स्टेटमेंट नंबर 1 दैट ही हैज मेड इज रिजिजू चैलेंज द सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस आपको पता ही होगा कि हमारे पास अभी कॉलेजियम सिस्टम है जो जजेस को अपॉइंट करता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सबॉर्डिनेट जुडिशरी दैट इज थ्रू एग्जाम्स. स्टेट लेवल पब्लिक सर्विस कमीशन इज कंडक्टिंग द एग्जाम, दैट इज डिफरेंट थिंग. हम अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम से जजेस अपॉइंट होते हैं, सीनियोरिटी के हिसाब से जजेस अपॉइंट होते हैं. जजेस रिकमेंड द नेक्स्ट जज टू बी अपॉइंटेड. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इस तरीके से अपॉइंट होता है. यानी कि ये सारा जो अफेयर है जुडिशरी के अंदर ही होता है. एंड रिजिजू का कहना यह है कि इट इज ओपेक, it is not transparent and it is alien to the Indian constitution according to किरण रिजिजू. नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन भी एस्टैब्लिश हुआ था इसके बारे में, बट इसके बारे में मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि वो एक्चुअली है क्या. बट उससे पहले हमें कमेंट को डिटेल में समझना होगा. किरण रिजिजू has also remarked that the collegium system, it is actually judges are spending half of their time in deciding who to appoint the judges instead of delivering justice. This was a very direct comment that he has made and a direct attack he has made on the judiciary. This was the first statement that was controversial made by him. Then the next primary task of a judge is to deliver justice to the people. What I see as a law minister is that half of the time of the judges is spent on deciding who would be becoming the next judge rather than giving justice. So this is again a very controversial statement जिसको काफ़ी सारे judges ने, former retired judges ने भी बहुत ज़्यादा criticize किया है. And he suggested rather that the government should be given some role in appointing of judges. This was something which was made by Kiran Rijiju. यानी कि government को role देना चाहिए, but इसमें executive का involvement judiciary में किस हद तक support किया जाएगा, that is a question. We all know that independence of judiciary is a feature of the constitution. तो अगर हम एग्जीक्यूटिव्स को, गवर्नमेंट को जुडिशियल अपॉइंटमेंट में इन्वॉल्व करते हैं तो उसका बहुत सीरियस थ्रेट हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन पर और डेमोक्रेसी पर. सो दिस इज नॉट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, बट दिस वाज समथिंग विच वाज पुट फोर्थ बाय हिम एज अ सजेशन. If we follow the spirit of the constitution, appointing judges is the task of the government. Secondly, there is no practice anywhere in the world except in India that judges appoint judges themselves. People can see that the politics among the leaders, but they do not know the politics going on inside the judiciary while appointing judges, as the deliberations are intense. This was again a very controversial statement that was put forth by Kiran Rijiju. He said that politics मिनिस्टर्स के बारे में बहुत ज़्यादा है, बट जुडिशरी में जो पॉलिटिक्स चल रहा है इसके बारे में कोई बात नहीं करता है और ये बहुत सीरियस है. इसका सीधा सीधा अटैक जुडिशरी पर वापस से उन्होंने किया है. ही सेड दैट जजेस को अपॉइंट करना ये गवर्नमेंट का टास्क होना चाहिए. बाकी सारे कंट्रीज़ में ऐसा कोई प्रैक्टिस नहीं है कि जजेस ही जजेस को अपॉइंट करते हैं. सो ही हैज़ क्वेश्चनड द कॉन्स्टिट्यूशन रादर. Many judges make observation which is not a part of the order. By making such observations, they demonstrate their thinking, and in the society it is also criticized. We do not want to say that the judges should behave in a particular manner, but just like the media have their ethics and self-regulatory practices, judiciary should also think on the same lines, especially in today's time of social media. This was again a very critical comment that he has made on the conduct of the judges. जजेस को काफ़ी सारी इम्यूनिटी भी दी गई है, बट जजेस जो भी कमेंट्स देते हैं वाइल द मैटर इज गोइंग ऑन, उसके लिए एक इन हाउस सिस्टम होना चाहिए ऑब्जर्वेशन का. ऐसा किरण रिजिजू का सजेशन था. ही सेड दैट सिंस एवरीबडी इज सब्जेक्टेड टू अ चेक, even the ethics are involved in media also, everywhere it is involved, then why not on the judges? So ये again उन्होंने क्वेश्चन किया है जजेस के कंडक्ट पर, एंड इसको जजेस ने भी सपोर्ट नहीं किया है. जजेस हैव ऑल्सो मैंशन दैट ये ऐसा नहीं हो सकता है बिकॉज ब्रिंगिंग द बेस्ट आउट ऑफ द लॉयर्स द जजेस हैव टू मेक सर्टन कमेंट्स टाइम एंड अगेन. सो इसको भी अगेन क्वेश्चन किया गया था एंड क्रिटिसाइज किया गया था. एंड द लास्ट स्टेटमेंट दैट ही मेड अगेन विच इज कॉन्ट्रोवर्शियल, आई विल बी टेकिंग अप इन दिस वीडियो. In the Supreme Court, people who speak English well dominate. In the Supreme Court, there are 40 to 50 such lawyers who have created a monopoly. They even threaten the judges just because they use heavy English words. Citizens should get the
राइट टू यूज इंडियन लैंग्वेजेस बिफोर कोर्ट्स, यानी कि लैंग्वेज का मुद्दा यहाँ पे उन्होंने उठाया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश बोलने वाले एडवोकेट्स डोमिनेट करते हैं और जजेस को भी थ्रेटन करते हैं। इन द कमिंग डेज देयर शुड बी एन ऑप्शन इवन इन द सुप्रीम कोर्ट टू स्पीक इन द नेटिव इन द इंडियन लैंग्वेजेस, एंड आवर थिंकिंग शुड go in that direction. Being a law minister, he has also made this suggestion that the Supreme Court should also be working in the vernacular language and not restrict itself to English. So again उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन किया है कि लॉयर्स जो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं वो क्यों डोमिनेट कर रहे हैं हायर जुडिशरी में। ये उन्होंने बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा यहाँ पे पुट किया है, एंड ये भी काफी कंट्रोवर्सी में रहा है। So now this was all that he has made, the comments that he has made, and एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से भी करना चाहती हूँ कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन क्या है एंड इसको किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव किया है, किस अमेंडमेंट से और किस अमेंडमेंट से ऐड किया है, ये मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन भी काफ़ी हद तक एक प्रयास था गवर्नमेंट का कि जुडिशरी के अपॉइंटमेंट्स में गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए, बट जिसको अगेन इट वॉज मार्क्ड एज द थ्रेट टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वॉज रिमूव्ड बिकॉज ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट होगा। बट फिर किरण रिजिजू ने भी इस पर ही स्टेटमेंट्स दिए थे, एनजेएससी के बारे में डायरेक्टली नहीं, बट उन्होंने जो भी स्टेटमेंट्स दिए हैं ये अगेन इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अब हमने नतीजा तो देख ही लिया दैट ही हैज बीन रिमूव्ड एंड ही हैज बीन पुट इनटू द अर्थ साइंसेज मिनिस्ट्री। सो ये डेमोक्रेटिक एजेंडा है जो हमें डिस्कस करना और पता होना बहुत ज़रूरी है। एग्जीक्यूटिव का रोल, जुडिशरी का रोल और इनका कन्फ्लिक्ट हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। करंट अफेयर सेक्शन में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें आप लॉ पढ़ रहे हो तो आपको ये टॉपिक्स पता होने बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं यू कैन रीच आउट टू अस एट iExamBee एनी टाइम एंड प्रिपेयर 50% फास्टर विद अस। थैंक यू एवरीबॉडी।